Assalamu alaikum. Lecture number 5, microbiology. In the previous lecture we have studied about basic bacterial structures. As we know, basic bacterial structures consist of many organelles and its outer membranes. ठीक है, we have studied all the organelles. For example, we have studied flagella, pili, inclusion bodies, and we also discussed about its membrane. For example, capsule, cell envelope, cell wall, cell membrane. Okay, our today's lecture is culture. ठीक है, we have studied about culture in detail. ठीक है, culture. Let's read it from the book, page number 19. Culture is the term given to microorganisms that are cultivated in the lab for the purpose of studying them. Culture is a definition. Culture is a word. Culture is a term. For what purpose it is used? It is used for the cultivation of microorganisms, for the growth of microorganisms in the laboratory. ठीक है, we can use this term to cultivate microorganisms, to cultivate all the tiny creatures on the lab for the studying purpose. Okay, next our term is media. Media is the term given to the combination of ingredients that will support the growth and the cultivation of microorganisms by providing all the essential nutrients required for the growth in order to cultivate these microorganisms in a large numbers to study them. Media is a different term from the culture. Why? This is because media contains combination of ingredients. ठीक है, it has many ingredients. For example, protein, carbohydrates, all other macromolecules या micromolecules to grow bacteria or other microorganisms fastly. ठीक है, so that bacteria and other microorganisms cultivate easily in a large amount. Okay, media and culture is opposite terms. ठीक है, culture is used to cultivate, to grow the microorganisms in the laboratory, but media contains combination of extra ingredients for the enrichment of microorganisms. Okay, among the different kinds of microorganisms, the two groups that can be grown in cultures are bacteria and fungi. For the purpose of studying the two easy groups which can easily be cultivated on the media or on the culture are basically bacteria and fungi. Okay? These two microorganisms groups are very easy to cultivate and very easy to study. Therefore, these groups are widely used for these purposes. Okay. Culture media. Let's discuss about the culture media. Your main topic is started from the culture media, in which we further discuss about the classification of culture media. Then further we will discuss about the classification, which basis on which basis classification depends. Okay. Culture media. Culture media is the media in which the inoculation of microorganisms has been successfully done. कल्चर मीडिया इज अ मीडिया, एक ऐसा मीडिया है जिसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म की इनोकुलेशन की जाती है, जिसमें सक्सेसफुली माइक्रोऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया जाता है या माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. ठीक है, इट इज़ अ लिक्विड और जेल डिजाइन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स और सेल्स. कल्चर मीडिया इज अ लिक्विड, एक लिक्विड है या एक जेल भी हो सकती है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. सॉलिड बेसिस होती हैं, केमिकल बेसिस होती हैं, फिजिकल बेसिस होती हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन कल्चर मीडिया लिक्विड भी हो सकती है, एक जेल भी हो सकती है, स्पेशली डिजाइंड है, स्पेशली बनाई गई है. किस लिए? माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या सेल्स की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, माइक्रोऑर्गेनिजम्स या सेल्स की ग्रोथ को फास्ट वगैरह करने के लिए या उसकी ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी कल्चर इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट. ये कल्चर लैब्स के अंदर, बायोलॉजिकल लैब्स के अंदर क्यों प्रिपेयर किया जाता है, या ये मीडिया जो सा कल्चर मीडिया क्यों प्रिपेयर किया जा सकता है? क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम लोगों को ग्रो करवाना पड़ता है. पीछे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के हम लोगों ने अंदर पढ़ा था कि काफ़ी माइक्रोऑर्गेनिज्म जो से हैं फूड वगैरह, वैक्सीन वगैरह, मेडिसिन वगैरह को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. जैसे बहुत सी हम लोगों ने मेडिसिन, वैक्सीन, दही बनाने के लिए यीस्ट वगैरह इस्तेमाल होते हैं. तो इस वजह से इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. नेचुरली तौर पर तो पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम इनको मजीद इनकी जरूरत पड़े वैक्सीन वगैरह दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, तो इनको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर, लैब्स के अंदर, बायोलॉजिकल लैब्स के अंदर आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा जल्दी यूजफुल प्रोडक्ट्स इनसे हासिल कर सकें. इस वजह से कल्चर या मीडिया कल्चर की इन्वेंशन हुई. ठीक है, इन कल्चर्स या इन मीडिया की मदद से हम लोग उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके ग्रोइंग रेट को फास्ट कर सकें और लार्ज अमाउंट में
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हासिल कर सके, ताकि हम लोग अपने जो उनसे ईटिंग प्रोडक्ट्स हैं या मेडिसिन प्रोडक्ट्स हैं इजीली ज़्यादा मिकदार में हासिल कर सके। तो समझ आ गई है ना कि कल्चर और मीडिया को किस लिए इन्वेंट किया गया था, और कल्चर मीडिया किस लिए होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ के लिए, स्पेशली बैक्टीरिया, फंजाई एंड यीस्ट। ओके, like all other organisms, microorganisms also require food or nutrients for living, on which microorganisms are grown in the laboratory. As you know guys, everybody who can live on the earth requires nutrients or require foods to live, ठीक है। हर जानदार को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स विच वी आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, जिसको हम लोग रोटी की शक्ल में खा लेते हैं। रोटी के अंदर काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है और वी कैन लिव, ठीक है। इस फूड की मदद से हम लोग जिंदा रह सकते हैं। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट हैं, इनको भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो न्यूट्रिएंट्स हम लैब के अंदर किस मदद से प्रोवाइड करते हैं, वो हम लोग मीडिया की मदद से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। These nutrients are known as culture medium and the growth itself is culture। अगर वो ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो उसको हम लोग कल्चर कहेंगे, और अगर हम लोग इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम लोग मीडिया कहेंगे। अगर सिंगुलर कोई सिंगल इंग्रेडिएंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्टीवेशन को, तो उसको हम लोग कहेंगे कल्चर मीडियम। ओके, कल्चर मीडिया हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, केमिकल कंपोजिशन एंड यूज, ठीक है। अब कल्चर को क्लासिफाई किया गया 3 बेसिस पर। कल्चर सिर्फ एक काइंड का नहीं होता, कल्चर कई किस्म का होता है। उसको क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो सी है वो कल्चर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट के लिहाज से कल्चर किस किस किस्म के हो सकते हैं, वो लिक्विड मीडिया हो सकती है, सॉलिड मीडिया हो सकती है, सेमी सॉलिड मीडिया हो सकती है। इसके अलावा सेकेंड क्लासिफिकेशन कल्चर की है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन कल्चर की क्या हो सकती है, नेचुरल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, सेमी सिंथेटिक मीडिया। और उसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन जो सी है वो कल्चर की बेस्ड ऑन द फंक्शनल यूज और एप्लीकेशन है। वो आगे इनरिच्ड मीडिया वगैरह, बेसल मीडिया, हम लोग वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि कल्चर जो सी है उसकी स्टेट्स, जो फिजिकल स्टेट्स हैं, किस किस स्टेट में पाया जाता है। जो कल्चर होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी पाया जा सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी पाया जा सकता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी पाया जा सकता है। अगर एमसीक्यूज आए कि इन विच फॉर्म द मीडिया डज नॉट, कल्चर मीडिया डज नॉट एग्जिस्ट, देन यू नो कि जो कल्चर मीडिया डज नॉट एग्जिस्ट इन एयर फॉर्म, ठीक है। एयर फॉर्म के अंदर लिक्विड मीडिया, एयर फॉर्म के अंदर कल्चर या मीडिया नहीं एग्जिस्ट करता। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। लिक्विड मीडिया, दीज आर अवेलेबल फॉर यूज इन टेस्ट ट्यूब्स, बॉटल्स और फ्लास्क। पहले हम लोग डिस्कस करें लिक्विड मीडिया, ऐसा कल्चर जो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, वो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। दीज आर अवेलेबल फॉर यूज इन टेस्ट ट्यूब्स, बॉटल और फ्लास्क के। अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर आप लोगों ने फ्लास्क के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर या बॉटल्स के अंदर ग्रो करवाना है तो उसके अंदर हम लोगों को लिक्विड मीडिया यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लिक्विड मीडिया समटाइम रेफर्ड एज ब्रूथ्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रूथ। लिक्विड मीडिया को बाज़-औक़ात ब्रूथ भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रूथ मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट ब्रूथ। जो सी लिक्विड मीडियम की मॉडर्न फॉर्म है उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट ब्रूथ कहेंगे, ठीक है। देयर इज नो एगर इन द लिक्विड मीडिया, लिक्विड मीडिया के अंदर एगर नहीं होता, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो लिक्विड मीडियम के अंदर बहुत कम यूज होते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो लिक्विड मीडियम होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स पर कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता हो कि लिक्विड मीडिया की मॉडर्न फॉर्म को क्या कहते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट ब्रूथ कहते हैं, ठीक है। ये वाला अपने एमसीक्यूज हर हाल में रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आगे हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन की सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं, विच इज सॉलिड मीडिया, ठीक है। लिक्विड मीडिया का तो आप लोगों को पता है लिक्विड फॉर्म में होगी। अब सॉलिड मीडिया में क्या होता है, दिस फॉर्म ऑफ मीडिया इज मेनली यूज इन पेट्री डिशेस एज प्लेट कल्चर्स। हमें पता है जो लिक्विड मीडिया है वो बॉटल्स, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह के अंदर यूज होता है, लेकिन जो सॉलिड मीडिया वो किस में यूज होता है, वो पेट्री डिशेस के अंदर यूज होता है, ठीक है। They are used to observe the clunic characteristic size shape of the microorganisms।
अब ये सॉलिड मीडिया किस लिए इस्तेमाल होता है? सॉलिड मीडिया बेसिकली माइक्रोऑर्गेनिजम्स की शेप्स को, माइक्रोऑर्गेनिज्म के साइज को, माइक्रोऑर्गेनिज्म की क्लूनी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का ऊपर, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम लोग सॉलिड मीडिया को ऐड कर दें, सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दें, तो उससे माइक्रोऑर्गेनिज्म की शेप कितनी चेंज हो रही है, साइज कितनी चेंज हो रही है, उसकी क्लूनी कैरेक्टरिस्टिक्स किस हद तक चेंज हो रही है। ठीक है, agar is most commonly used to prepare solid media. It contains 1% agar. solid media के अंदर 1% agar की addition होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि liquid media के अंदर no agar, liquid media के अंदर agar नहीं होता है, solid media के अंदर 1% agar होता है, मतलब solid media के अंदर carbohydrates को भी यूज किया जाता है। ठीक है, semi solid media, these media has gelatinous in nature with jelly like consistency. कि जो सेमी सॉलिड मीडिया है ना वो बेसिकली थोड़े से गाढ़े होते हैं। ठीक है, ग्लूटिनस होते हैं, जेली लाइक होते हैं। ठीक है, लिक्विड मीडिया तो एक बिल्कुल लिक्विड में आ जाता है, बहुत पानी वाला चीज हो जाती है, लेकिन सॉलिड मीडिया एक बिल्कुल ठोस चीज हो जाती है। लेकिन सेमी सॉलिड मीडिया ऐसा मीडिया जो गाढ़ा गाढ़ा सा हो, जेली लाइक हो। ओके, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 0.2 to 0.5% एगर टू द फ्लूइड मीडियम। अब ये कैसे बनाया जाता है, सेमी सॉलिड मीडिया कैसे बनाया जाता है? अगर हम लोग लिक्विड मीडिया के अंदर 0.2 से लेके 0.5% एगर की एडिशन कर दें, तो उससे जो लिक्विड मीडिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर एगर कितना होता है? 0.2 से लेके 0.5% एगर सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर होता है। ठीक है, दीज मीडिया आर यूज फॉर मोटिलिटी टेस्ट एंड फॉर डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट। अब ये वाला मीडिया माइक्रोऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्यों इस्तेमाल होता है? ये मीडिया इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स की मोटिलिटी को टेस्ट किया जा सके, उनकी मूवमेंट्स को टेस्ट किया जा सके, एंड फॉर डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट, और उनके जितने भी बायोकेमिकल जितने भी रिएक्शंस वगैरह उनके अंदर हो रहा है उनकी टेस्टिंग के लिए भी सेमी सॉलिड मीडिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने फिजिकल स्टेट पर क्लासिफिकेशन देख ली है ना कल्चर की, कि 3 तरह की फिजिकल स्टेट्स कल्चर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। पहली स्टेट लिक्विड मीडिया, सेकेंड स्टेट सॉलिड मीडिया, और थर्ड स्टेट जो होती है सेमी सॉलिड मीडिया। इन तीनों की आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जिस्टेंस देख ली ना, कि पहली जो सी होती है वो टेस्ट ट्यूब्स और बॉटल्स और फ्लास्क के अंदर यूज की जाती है, दूसरी जो सी होती है वो पेट्री डिशेस के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह आप लोगों ने सारी 1 by 1 प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि उनके अंदर जो मीडिया हैं उनकी केमिकल्स, उनके अंदर कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कितने कितने यूज हो रहे हैं, किस किस फॉर्म के अंदर यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब इस केमिकल कंपोजिशन की बेस पर जो क्लासिफिकेशन है कल्चर की वो है नेचुरल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया और सेमी सिंथेटिक मीडिया। ठीक है, नेचुरल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, सेमी सिंथेटिक मीडिया, इन तीनों के अंदर डिफरेंस मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। नेचुरल मीडिया, दोज मीडिया हुज केमिकल कंपोजिशन इज नॉट नोन आर कॉल्ड नेचुरल मीडिया। ऐसे मीडिया जो कुदरती तौर पर पहले ही पाए जाएं, जिनको बनाने की हमें ज़रूरत ना पड़े, पहले ही बने बनाए हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल मीडिया कहते हैं। अब जैसा कि हमें कुदरती तौर पर ये मीडिया मिलते हैं तो इनकी ऑब्वियसली हमें कंपोजिशन नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से हमें बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स all the necessary ingredients for growth of microorganism but they are in crude form। अब ये जो से नेचुरल मीडिया होते हैं इसके अंदर सारी ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होती हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो कुदरती तौर पर ज़मीन वगैरह पर जो एल्गी वगैरह उगती है तो वो किस मीडिया के अंदर उगती है? वो बेसिकली नेचुरल मीडिया के अंदर उगती है। क्यों? क्योंकि उस मीडिया के अंदर अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, सारे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। इस वजह से वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो सही हो रही होती है। ठीक है, दे आर मोस्ट यूजफुल फॉर कल्टिवेटिंग अननोन बैक्टीरिया as it usually provides full range of growing factors such as amino acid, polypeptides, vitamins and minerals। अब इसमें अननोन बैक्टीरिया की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल मीडिया, ये बस आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन जो सी होती है वो अननोन होती है, इसकी केमिकल कंपोजिशन हमें नहीं पता होती है। ठीक है, ये आप लोगों का मेन पॉइंट होना चाहिए। सेकेंड क्लासिफिकेशन है सिंथेटिक मीडिया। अब हम लोग सिंथेटिक मीडिया को डिस्कस करते हैं।
मीडिया प्रिपेयर्ड बाय एडिंग प्रिसाइज अमाउंट ऑफ हाईली प्योरिफाइड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स टू डिस्टिल्ड वाटर, सिंथेटिक मीडिया। ये ऐसा मीडिया है जिसके अंदर इंग्रेडिएंट जितने भी ऐड हुए होंगे ना वो हमें नॉन होंगे, वो हमें पता होंगे क्योंकि वो हम लोगों ने खुद ऐड किए होंगे। प्रिसाइज अमाउंट्स हम लोगों ने ऐड किए होंगे। किस लिए? वाटर को डिस्टिल करने के लिए, वाटर की डिस्टिलेशन करने के लिए, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, वाटर को साफ करने के लिए। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन इज नॉन इन दिस मीडिया। इस मीडिया के अंदर केमिकल कंपोजिशन जो सी है वो मालूम होगी हमें। ठीक है, दिस मीडिया आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन स्टडिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल इनरिच्ड मीडिया। अब ये मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टडिंग पर्पसेस के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं, तो इस लिहाज से हम लोग इफेक्ट जो है ना ज़्यादा क्लेरिफाई करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि फ्लाई इंग्रेडिएंट ने जो सा ये फ्लाई इफेक्ट वगैरह दिया है। ओके, लास्ट जो सी क्लासिफिकेशन है वो है सेमी सिंथेटिक मीडिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? द मीडिया ऑफ विच केमिकल कंपोजिशन इज पार्शली नॉन इज एज सेमी सिंथेटिक मीडिया, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट, एगर, PAD, ETC। अब ऐसा मीडिया जिसमें केमिकल कंपोजिशन जो सी पार्शली नॉन है, कि हमें आधी कंपोजिशन पता है और आधी कंपोजिशन जो सी है वो नेचुरली तौर पर पाई जा रही है, तो ऐसी मीडिया को हम लोग क्या कहेंगे? सेमी सिंथेटिक मीडिया कहेंगे। सिंथेटिक मीडिया जिसमें हमें सारी की सारी केमिकल कंपोजिशन पता है, नॉन है, और सेमी सिंथेटिक मीडिया जिसमें हमें पार्शली नॉन है, कि हमें आधी पता है। मेजर डिफरेंस जो सा है वो ये है इन तीनों की क्लासिफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शनल यूज और एप्लीकेशन। तो अभी आप लोगों ने ये दो क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से रीड कर लेनी है और इनको समझना है, और अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।